جھنڈے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ دستار فضیلت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، مردود پہ لاہور کی بس فائٹ چاہیے۔ اب شیطان یہ کہتا ہے مسلم نبی کا نام، مردود پہ لاہور کی فائٹ چاہیے۔ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، کیا جملہ دیا ہے ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہائٹ اونچی ہو گئی، مائک ہائٹ اونچی ہو گئی۔ اسٹیج پر جلوہ بار علماء کرام، حاضرین مجلس، ہماری پردہ نشین بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للمتباحث بجلالہ المتفرد، وصلاته دونا على خير الانام محمد، وجعل بها احمد رضا عبدا بحفظ السيد، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي النبي الكريم، ونحن ولذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسبہ نامے درود و سلام کو حدیث شعر کریں، پڑھیے بابا صلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناشیق پہ تم ارشاد فرمانے کس کی آمد سے اجالا ہے، کس کی آمد سے اجالا ہے، کوئی اور نہیں، کس کی آمد سے اجالا ہے، کوئی اور نہیں، کس کی آمد سے اجالا ہے، کون ہے جس کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، کون ہے جس کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، کون ہے جس کو جھلاتے ہیں فرشتے جھولا، کون ہے جس کو
اللہ کہتا ہے دودھ تو دودھ ہی پانی کو کہے گا پانی، دودھ تو دودھ ہی پانی کو کہے گا پانی، کہ دودھ تو دودھ ہی کہ دودھ تو دودھ ہی پانی کو کہے گا پانی، اعلیٰ حضرت کا وہ بیٹا ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ بیٹا ہے، کوئی اور نہیں، اعلیٰ حضرت کا وہ بیٹا ہے، کوئی اور نہیں، کس کی آمد سے اجالا ہے، کوئی اور نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، قرآن دیتا ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت بھی سلطان علی ہے، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے۔ یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں۔ کہہ دو مطلب کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امت کے نگہبان علی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ آپ کے پاس نور آ گیا، وہ نور پورے زمانے کے اندر گردش کرتا رہا، پورے زمانے کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا۔ اور میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی بھی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ ساری اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کر دیا۔ نہ تو حضرت آدم آئے تھے، نہ حضرت شیس آئے تھے، نہ حضرت ابراہیم آئے تھے، نہ حضرت یعقوب آئے تھے، نہ حضرت داؤد آئے تھے، نہ حضرت الیاس آئے تھے، کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نور کو پہلے ہی پیدا فرما دیا۔ حدیث شریف کے اندر ہے اول ما خلق اللہ نور، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ نور ایسا نور اعلیٰ نور ہے، پورے زمانے کے اندر گردش کرتا رہا، پورے زمانے کے اندر گھومتا رہا، اور وہ نور کی کرنیں جس سے پڑتی رہی وہ انسان چمکتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر نور کی کرن پڑی، حضرت آدم علیہ السلام چمک اٹھے، حضرت شیس علیہ السلام پر نور کی کرن پڑی، حضرت شیس علیہ السلام چمک اٹھے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نور کی کرن پڑی، حضرت داؤد علیہ السلام چمک اٹھے، حضرت زکریا علیہ السلام پر نور کی کرن پڑی، حضرت زکریا علیہ السلام چمک اٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نور کی کرن پڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چمک اٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نور کی کرن پڑی، حضرت موسیٰ علیہ السلام چمک اٹھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نور کی کرن پڑی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمک اٹھے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، چمکتے رہے، دمکتے رہے، جس پہ نور کی کرنیں پڑتی رہی وہ انسان چمکتا رہا، چمکتا رہا۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھیے حضرت آدم کے نام لیوا ہیں، حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ کریم اللہ کو ماننے والے ہیں، حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جس خطے میں چلے جائیے، جس کونے میں چلے جائیے، وہاں پر کیا ہے نبی سے محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے۔ جس پہ نور کی کرنیں پڑتی رہیں وہ انسان چمکتا رہا، اور دیکھیے ایسا چمکا اور ایسا چمکایا، ایسا چمکایا کہ جو ظالم کیا جو بغض رکھنے والے تھے وہ دیکھیے دنیا سے چلے گئے، ان کا نام و
चमकता रहेगा। वो क़यामत तक क्या चमकता रहेगा? जब मेरे नबी दुनिया के अंदर आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए तो उनका नाम लेकर पुकारा, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकुल जन्ना। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम आए तो उनका नाम लेकर पुकारा, या यहया खुज़ुल किताबा बिक़ुव्वा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए दुनिया के अंदर पैदा फरमाया तो उनका नाम लेकर पुकारा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर पैदा किया तो देखिए उनका नाम लेकर पुकारा, या मूसा इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा तो उनका नाम लेकर पुकारा, या ईसा इन्नी तौफीका बराफीका इलिया। देखिए जितने भी अंबिया करम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उनका नाम लेकर पुकारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, उनका नाम लेकर पुकारा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, उनका नाम लेकर पुकारा। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, उनका नाम लेकर पुकारा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, उनका नाम लेकर पुकारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, उनका नाम लेकर पुकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, उनका नाम लेकर पुकारा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आए, उनका नाम लेकर पुकारा। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी अंबिया करम अलैहिस्सलाम आए हैं, अल्लाह ने सबका नाम लेकर पुकारा। मगर जब मेरे नबी की बारी आती है, आमना के लाल की बारी आती है, अब्दुल्ला के दुलारे की बारी आती है, तो मेरा खुदा, मेरा परवरदिगार नाम लेकर नहीं पुकारता है, बल्कि अलकाब से पुकारता है। कहीं तो या अय्युहल मुद्दस्सिर के अलकाब से पुकारता है, कहीं तो या अय्युहल मुज़्मिल के अलकाब से पुकारता है, कहीं तो यासीन वल कुरानिल हकीम के अलकाब से पुकारता है, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के अलकाब से पुकारता है। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी की वो शान है। मेरे नबी को अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया में अफज़ल व आला पैदा फरमाया, और मेरे नबी की जो उम्मत है तमाम उम्मतों में सबसे अफज़ल व आला मेरे नबी की उम्मत है। और मैं आपको बताऊं, एक आशिक रसूल, एक गुलाम-ए मुस्तफ़ा ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आता है। देखिए जो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह कहने वालों को मुशरिक कहते हैं, बिदअती कहते हैं। जब वो नमाज पढ़ने के लिए एक आशिक रसूल ऐसी मस्जिद पहुंचता है तो देखता क्या है, मेहराब की दीवार पर क्या है, मेहराब की दीवार पर क्या लिखा है, या हय्यु या क़य्यूम लिखा हुआ है। अब उसको क्या लगता है कि देखिए कोई नबी से चलने वाला होगा जिसने नबी का नाम ही लिखा है। जाता है बाजार में, जाता है दवात को खरीद कर लाता है, उसके आगे या रसूलुल्लाह लिख देता है। या रसूलुल्लाह मस्जिद के अंदर लिख दिया। वो आशिक रसूल नमाज पढ़ने के लिए आया था, गुलाम-ए मुस्तफ़ा नमाज पढ़ने के लिए आया था, नमाज पढ़ के चला गया, या रसूलुल्लाह लिख कर चला गया। जब नमाज का टाइम होता है, और वो मस्जिद किनकी थी जो या रसूलुल्लाह को मुशरिक कहा करते थे, जो इनको बिदअती कहा करते थे। जब वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, मौलवी साहब हाजिर होते हैं, मुक्तदी हजरात हाजिर होते हैं, तो कहते हैं अभी तक या हय्यु या क़य्यूम दीवार पे लिखा हुआ था, इसके आगे या रसूलुल्लाह किसने लिख दिया है? आपस में मुक्तदी झगड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, फसाद फैला रहे थे। मौलवी साहब आ गए, परेशान की हो, आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? कहते अभी तो या हय्यु या क़य्यूम लिखा हुआ था, या रसूलुल्लाह किसने लिख दिया है? मौलवी साहब ने कहा परेशान मत हो, जाओ बाजार जाओ, एक दवात को खरीद कर लाओ, इसके ऊपर क्या पोत दो, या रसूलुल्लाह या मिट जाएगा, या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है या मिट जाएगा। देखिए बाजार में एक शख्स जाता है, बाजार से दवात को खरीद कर लाता है, या रसूलुल्लाह पर फेर दिया जाता है। जब फेर दिया गया, सारे नमाजी नमाज पढ़कर चले गए, मगर जब नमाज पढ़ के चले आते हैं, जब वो सूख जाता है, जब वो खुश हो जाता है, अभी तो मिटा हुआ मालूम हो रहा था, जब वो खुश हो जाता है तो और ज्यादा या रसूलुल्लाह चमकने लगता है। फिर मुक्तदी हजरात यहाँ मस्जिद के अंदर वो हाजिर होते हैं, मौलवी साहब हाजिर होते हैं, मौलवी साहब से कहते हैं मौलवी साहब आपने कहा था कि या रसूलुल्लाह मिट जाएगा, ये तो या रसूलुल्लाह मौजूद है तो मिटा ही नहीं है। तो कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, जाओ मिस्त्री को लाओ, इसको खोद कर निकाल देगा। परेशान क्यों हो? मिस्त्री को बुलाया जाता है, मिस्त्री खोद कर निकाल देता है, वो चला जाता है। जाने के बाद देखिए फिर क्या है, दूसरे दिन क्या होता है, और ज्यादा क्या है, या रसूलुल्लाह चमकने लगता है। फिर इकट्ठा होते हैं, फिर कहते हैं मौलवी साहब ये बताओ या रसूलुल्लाह तो मिटा ही नहीं है और ज्यादा चमकने लगा है। मौलवी साहब कहते हैं परेशान क्यों हो? गारा को बुलाओ, बजर को लाओ, सीमेंट को लाओ, सबको मिलाओ, उसको मिलाकर क्या है अपनी बाल में
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। ये मतलब सवाल मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वो हिजरत की रात थी, नबी की हिजरत की रात थी। कौन सी दारुल नदवा, यानी वो दारुल नदवा है जहाँ मेरे नबी की मिटाने की पिलाने की जा रही थी। जैसे ही नबी क्या हिजरत से निकलेंगे, जैसे ही नबी क्या हिजरत से निकलेंगे, वैसे ही नबी को आज क्या है खत्म कर दिया जाएगा। मेरे नबी के मिटाने की पिलाने की जा रही थी, साजिशें रची जा रही थी। उसमें 40 कुफ्फार थे। कौन कौन थे? उसके अंदर अबू जहल भी था, उसके अंदर अबू लहब भी था, उतबा भी था, शेबा भी था। सारे बड़े बड़े सरदार क्या है, मक्का के सारे बड़े बड़े सरदार क्या है, उसमें उस जमात के अंदर शामिल थे। यानी 40 कुफ्फार मुशरिकीन थे। मेरे नबी मेरे नबी की मिटाने की पिलाने के रहे थे कि जैसे ही नबी क्या हुजरे से निकलेंगे आज का इनका काम तमाम कर दिया जाएगा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन मेरे नबी की मिटाने की पिलाने कर रहे हैं, मगर मेरे नबी हुजरे के अंदर मौजूद है। सब मालूम है कि कुफ्फार क्या है, मेरी घात में लगे हुए हैं। जैसे हम निकलेंगे मेरे मारने के पिलाने की है, मगर मेरे नबी निडर होकर क्या बैठे हुए हैं, कोई खौफ नहीं है दिल के अंदर। और आपके साथ में हजरत अली हैं और हजरत सिद्दीक भी हैं। वो हिजरत की रात थी, मक्का से आपको मदीना आना था। वो हिजरत की रात ऐसी रात थी, मेरे नबी की देखिए 40 कुफ्फार मुशरिकीन क्या है, देखिए घात लगाए हुए बैठे हैं, पहरा दे रहे हैं। जैसे नबी निकलेंगे आज नबी का काम तमाम कर देंगे, इनका नामो निशा खत्म हो जाएगा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर देखिए हजरत सिद्दीक़ अकबर साथ में है, हजरत अली साथ में है। हजरत अली से मेरे नबी फरमाते ऐ अली ये कुछ अमारतें हैं, कुछ विरासतें हैं, सारी अमारतें तकसीम करके तुम भी मदीना तैयबा तशरीफ ले आना। सारी विरासतें तकसीम करके तुम भी मदीना क्या तशरीफ ले आना। जितनी अमारतें हैं सारी विरासतें हैं तुम्हारे पास, सबकी तकसीम कर देना, तुम भी मदीना तैयबा तशरीफ ले आना। मेरी ये हिजरत का रात है। नबी पढ़ते हैं अपनी मुट्ठी में क्या है मिट्टी को लेते हैं, पढ़ते हैं इधर रमैता हमारा रमैता, पढ़ कर क्या है कुफ्फारों की तरफ क्या है उनकी नजरों की तरफ फेंक देते हैं। फेंकने के बाद देखिए मेरे नबी चले जाते हैं और मेरे नबी जाने से पहले फरमा देते हैं अली से ऐ अली इस चादर को ओढ़ कर मेरे बिस्तर पर सो जाना। मेरे नबी देखिए 40 कुफ्फार मुशरिकीन क्या है घात लगाए हुए हैं, पहरा दे रहे हैं। जैसे ही नबी निकलेंगे नबी का काम तमाम कर देंगे। मेरे नबी क्या है सामने से निकल कर चले गए, पूरी रात पहरा देते रहे, पूरी रात जागते रहे, पूरी रात चक्कर पे चक्कर लगाते रहे। जब सुबह होती है तो देखते क्या है कि नबी सो रहे हैं, जब आँख खुलती है जब देखते क्या है कि हजरत अली सो रहे हैं। हजरत अली से पूछते हैं तुम्हारे नबी किस टाइम यहाँ से चले गए, तुम्हारे नबी कहाँ हैं? हजरत अली फरमाते तुमको मालूम नहीं है वो तो रात ही यहाँ से निकल कर चले गए। कि रात कैसे निकल कर चले गए? पूरी रात हम जागते रहे, पूरी रात हम पहरा देते रहे, चक्कर पे चक्कर लगाते रहे, और अल्लाह ताला ने उनके सामने ऐसा पर्दा डाल दिया उनकी निगाहें चकाचौंध रह गई। मेरे नबी सामने से निकल कर चले गए, मैं उनको नजर ना आए। जैसे आज लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे लोग आज लोगों को नजर नहीं आ रहे, ऐसे मेरे नबी क्या है सामने से निकल कर चले गए, उनको नजर ना आए, सामने से चले गए। हिजरत की रात थी और हजरत अली देखिए उस बिस्तर पर सोते हैं, वो बिस्तर जो मौत की घाट बना हुआ हो, क्योंकि मेरे नबी के दुश्मन थे, वही सिद्दीक के दुश्मन थे, वही हजरत अली के दुश्मन थे, सबके दुश्मन थे। देखिए सब पर हमला कर सकते थे, मगर वो बिस्तर जिस पर मौत मंडरा रही हो, वो बिस्तर जो मौत की घाट बना हुआ हो, हजरत अली को कैसे नींद आएगी? मगर हजरत अली फरमाते हैं कि आज मेरी जमानत, आज मेरी जिंदगी की जमानत मेरे नबी ने ले ली है, क्योंकि मौत तो आना बरात है, आज मौत नहीं आ सकती है। मेरे नबी ने फरमा दिया है ए अली सारी अमानतें सारी विरासतें तकसीम करके तुमको मदीने आना है। सारी अमानतें तकसीम करके मुझको मदीना पहुंचता है, आज मुझको मौत नहीं आ सकती है। और देखिए हजरत अली फरमाते हैं कि जो नींद मुझे नबी के बिस्तर पर आई, मुझे कभी अपनी लाइफ के अंदर अपनी जिंदगी में ऐसी नींद अपने बिस्तर पर नहीं आई जो नींद मुझे नबी के बिस्तर पर आई थी। और जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है अली, और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है। माशाअल्लाह ये मेरे नबी की शान
शान है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत की रात की देखिए, हिजरत की रात क्या है, जाते हैं गारे सौर में क्या है आप बना लेते हैं। ये बहुत ही लंबा वाक़या है, क्योंकि मेरे मुसलमान भाइयों ये दस्तारबंदी का मौका है। थोड़ा इस पे बयान हाफिज थोड़ा इस पे बयान करो, रोशन डाल दो। हाफिज शोएब साहब की दस्तारबंदी हुई है और सबने मुबारकबाद की माशाअल्लाह, और आपकी बस्ती में और मुबारकबाद भी देना चाहिए, हौसला अफजाई भी करना चाहिए। हौसला अफजाई करना इससे ये होता है बच्चे के अंदर क्या है एक जज्बा पैदा होता है, एक शौक़ पैदा होता है। जैसे आज हज़रत अल्लाह मौलाना बशीरुद्दीन साहब के बेटे हाफिज शोएब साहब, इन्होंने क्या है मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है, ये हाफिज बन गए हैं। और चंद साल में ऐसा नहीं है कि काफ़ी अरसा गुजर गया है, आप तो अपनी निगाहों से देख रहे हैं, अभी तो मूछें भी नहीं जमी है, दाढ़ी भी नहीं जमी है। ये बच्चा क्या क्या बन सकता है ये मत सोचो, ये अभी हाफिज बना है, इसके बाद कारी बनेगा, आलिमे दीन बनेगा, मुफ्ती बनेगा, अल्लाह चाहेगा इसको क्या है मुफक्किर भी बना सकता है, सब कुछ बना सकता है। अल्लाह ताला इस बच्चे को इल्म नाफ़े अता फरमाए, इसके जज्बे को सलाम। और आपकी बस्ती में अगर बच्चे हैं तो उनको भी पढ़ाइए, क्योंकि ये दीनी पढ़ाई है, क्योंकि दीनी पढ़ाई यही काम आने वाली है। आप दुनियावी पढ़ाई पढ़ाएं, इसको कोई मना नहीं करता है, मगर जो साथ में जाएगी यही पढ़ाई आपके साथ में जाएगी, यही अमाल आपके साथ में आपको लेकर जाएंगे। मैंने हदीस पाक का जिक्र किया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए, वही अच्छा है। और अपने बच्चे को पढ़ाओ। और हदीस शरीफ के अंदर है, नबी फरमाते हैं मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीही वलिबिसा बालिगुल कादिम मिन क़ियामा ज़ूहु अहसनु मिन ज़ूइ शम्स। कह दो सुभान अल्लाह। जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया तो उसके वालिद को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। क्या पहनाया जाएगा? ताज पहनाया जाएगा। ज़ूहु अहसनु मिन ज़ूइ शम्स, उसकी रोशनी कैसी होगी? सूरज से ज्यादा उसकी चमकदार रोशनी होगी। पूछने वाला पूछेगा, दूर से लोग देखेंगे ये कौन इंसान है, लोग कहेंगे ये वो है इंसान जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था, क़ारी कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था, हाफिज कुरान बनाया था। ये बच्चा वो है, इसके वालिद के सर पे ताज रखा जाएगा। आप ताज अपने सर पे रखवाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, क़ारी कुरान बनाओ। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाते हो, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाते हो, अपने बच्चों के अगर अपने बच्चों का करेक्टर को सुधारना है, अपने बच्चियों का करेक्टर को सुधारना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बच्चियों को हज़रत फातिमा के साँचे में ढाल दो और अपने आप को हज़रत अली के साँचे में ढाल दो। दुनिया तुम्हारे कदम चूमते नजर आएगी, दुनिया तुम्हारे कदम चूमते नजर आएगी। दुनिया के अंदर क्या है, लोग इंग्लिश मीडियम के अंदर क्या अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हाई स्कूल पास कराते हैं, कोई इंटर पढ़ाता है, कोई BA MA BCom सब कुछ पढ़ाता है। और देखा होगा बहुत से लोग पढ़ते भी हैं मगर नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी चक्कर में बेचारा क्या है, दर बदर क्या घूम रहा है, गली गली डगर डगर घूम रहा है, मगर नौकरी नहीं मिल रही है। और आपने अगर हाफिज़ कुरान बना दिया है, आलिम दीन बना दिया है, क़ारी कुरान बना दिया है, एक ऐसी डिग्री है जो क़यामत तक काम आएगी। अगर इसने बच्चे पढ़ा दिए तो क़यामत तक पढ़ने वाली नस्लें दुआएं करती रहेगी, उसके वालिद की दुआ मिलती रहेगी, उसके उस्ताद को दुआ मिलती रहेगी। जिसने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया है, जिसने बच्चे को क़ारी कुरान बनाया है, जिसने बच्चे को आलिम दीन बनाया है, क़यामत तक उसको दुआएं मिलती रहेगी, उसकी नस्लें चलती रहेगी, क़यामत तक उसको दुआएं मिलती रहेंगी। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कुरान पढ़ाओ, इल्म दीन पढ़ाओ। अपने बच्चों को ये नहीं कहता हूँ कि अपने बच्चों को प्रोफेसर ना बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ। सारे सब जितने हैं सब सिखाओ, जितने इल्म है सब सिखाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को इल्म दीन हासिल कराओ। पहले जरूरी ये है, क्योंकि आपने प्रोफेसर बना दिया, अगर डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया और आपने इल्म दीन
हाफिज कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, वही तुम्हारे लिए पांचों टाइम नमाजों में तुम्हारे लिए दुआएं करेगा, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेगा, अपने वालिद के लिए दुआ करेगा, अपनी वालिदा के लिए दुआ करेगा, अपने दादा के लिए दुआ करेगा, अपने खानदान वालों के लिए दुआएं करेगा, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए दुआएं करेगा, सबके लिए दुआएं करेगा। कौन करेगा? एक हाफिज़ कुरान करेगा, एक क़ारी कुरान दुआ करेगा, एक आलिम दीन दुआ करेगा। प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि प्रोफेसर ना बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, सब कुछ पढ़ाओ, मगर सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ, सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे क्या है दीन से क्या है आरास्ता पैरास्ता ना हो, हमारी बच्ची क्या है दीन से आरास्ता पैरास्ता ना हो। ऐसा ना हो। अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन पढ़ाओ, अपने बच्चियों को हज़रत फातिमा की सीरत को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को हज़रत आयशा की सीरत को पढ़ाओ। देखा होगा कि आज माहौल कैसा चल रहा है कि हमारी मुस्लिम भाइयों की नौजवान बेटियाँ क्या है गैर मुस्लिमों के साथ क्या है रफ चक्कर हो जाती हैं, चली जाती हैं। उनको ये पता नहीं इस्लाम से जो निकल जाता है वो खारिज हो जाता है, ना तो वो दुनिया के रहता है ना वो आखिरत के रहता है। दुनिया से चला गया, आखिरत से भी चला गया, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा, वो इंसान हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। और अपनी दुनिया कामयाब करना है, अपनी आखिरत कामयाब करना है, अपनी बच्चियों को, अपने घर वालों को हज़रत फातिमा की सीरत को पढ़ाओ, हज़रत आयशा की सीरत को पढ़ाओ, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। माशाअल्लाह, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होती नजर आएगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होती नजर आएगी। अगर तुमने अपने बच्चों को ना पढ़ा पाया तो क़यामत के दिन क्या तुम्हारा क़यामत के दिन क्या है, तुमसे क्या है सवाल पूछा जाएगा, तुमसे क्या है, तुमसे हिसाब व किताब होगा। तुमने अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया था, अपनी बच्चियों को कंट्रोल में तुमने क्यों नहीं रखा था, अपनी बच्चियों को शिकंजे में क्यों नहीं रखा था, अपनी बच्चियों को पर्दे की आड़ में तुमने क्यों नहीं रखा था। अगर भाई है तो भाई भी जिम्मेदार है, अगर बाप है तो बाप भी इसमें शरीक है, अगर माँ है तो माँ भी इसमें शरीक है। छोड़ी नहीं जाएगी मेरे भाइयों, सोच लो मैदान महशर में खुदा के सामने क्या मुँह दिखलाओगे। पर्दा कराओ अपनी बच्चियों को, अपने घर वालों को पर्दा कराओ, किसी गैर महरम के सामने अपनी बच्चियों को मत आने दो, क्योंकि औरत जो होती है वो छुपाने की चीज़ होती है। अपनी बच्चियों को घर के अंदर, अपने घर के अंदर रखो, अपनी बच्चियों को शादी करो तो ऐसी जगह शादी करो जो परहेज़गार हो, जो मुत्तकी हो। मैंने देखा है कि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि लोग अपनी बच्ची को शादी करते हैं। कैसे शादी करते हैं? मगनी हुई, मगनी होने के बाद क्या कहते हैं लड़के वाले, क्या कहते हैं, कहते हैं उस लड़की घर पे क्या मोबाइल भिजवा दो। लड़का बात करता रहेगा, लड़का बात करता रहेगा, लड़की बात करते रहेगी। मेरे भाई और कोई ऐसा कहे ये कभी मत होने देना, क्योंकि गैर महरम से बात करना हराम है, हराम। जब तक निकाह नहीं होता है, निकाह से पहले क्या है वो गैर महरम है, गैर महरम हराम है, बात करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई लड़के वाला कहता है कि अपनी बेटी से बात कराओ, मेरा बेटा बात करना चाहता है तो उसको खबरदार कर दो। ये मेरी शरीयत नहीं कहती है, ये शरीयत इजाजत नहीं देती है कि बारात से पहले, शादी से पहले क्या है, निकाह से पहले कि मेरी बेटी बात करे। शादी करना या मत करना, मगर मेरी बेटी हज़रत फातिमा की करीब है, हज़रत आयशा की करीब है, वो बात नहीं कर